हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग एक इंटरव्यू के अंदर कहा गया है। डिटेल में बात करेंगे क्या आरबीआई गवर्नर की यहाँ पे सोच है और इस टाइम पे मार्केट के अंदर जिस तरह से पैसा आ रहा है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है 2 बार पिछले 7 दिन के अंदर, फिर भी आरबीआई जो गवर्नर है उनकी सोच अभी भी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। तो इसके रिगार्डिंग आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या आरबीआई गवर्नर की तरफ से और स्टेटमेंट जो दिए जा रहे बैक टू बैक उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ में पहले इस चीज़ को सुनिए कि आखिरकार आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे कहा क्या, उसके बाद इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंडियन एक्सचेंज के बारे में और यहाँ पे बाइनेंस के बारे में और बात करने वाले हैं। कौन सी इंडियन एक्सचेंज यूज करनी चाहिए, बेस्ट कौन सी एक्सचेंज है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आरबीआई गवर्नर का ये स्टेटमेंट सुनिए जो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर की तरफ से कहा गया है। You've called cryptocurrency dangerous, and there's a time when the cryptocurrency was almost like a mania. Now that crypto and Bitcoin prices are coming higher, do you see the level of participation is still low, or level of participation off late after the price hike has also come back again in India? I think the exuberance which was there earlier 2 years ago, that exuberance is not there. There is greater awareness among the people about the risks and dangers associated with crypto. Some people will make money, but larger number of people are likely to incur loss because it's a speculative product. We have nothing against the technology. There has to be a clear line drawn between technology on which cryptocurrencies are based. Technology is the blockchain technology. We have nothing against it. Blockchain has got many applications. It's already under use. We are ourselves using the blockchain technology with regard to our central bank digital currency. So the underlying technology is a different, it's a different thing altogether that has to grow. We are ourselves using it in our central bank digital currency, the e-rupee. It is when that technology is used to develop certain products which are essentially speculative in nature and which are traded without any underlying and without any corresponding liability. Every asset has to have a matching, liability. Now, cryptocurrencies do not have whose liability it is, number one. Number two, there is no underlying. And it is a speculative product because without any underlying, some trading is going on. I sell you something for 1,000, you sell it to somebody for 2,000, somebody sells it to another person for 3,000. But what is the basis? So therefore, we call it a speculative product. And I think there is greater awareness among the people, not only in India, but internationally. And we have interaction with other central banks also very frequently. And there is greater awareness. Yes, today at the moment, as you said, some of these products are, they're sort of being traded at very high prices. And so there could be some amount of interest which is perhaps more than what it was 1 year ago. But if you compare with where we were 2 years ago, when there was a kind of exuberance building up, I think today there is a greater amount of realism. तो फ्रेंड्स, आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उनके अंदर आप सब ने सुना कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को तो सपोर्ट किया, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको वो सपोर्ट नहीं करे। उनका कहना है कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैसा आता है या फिर पैसा जाता है, यानी कि जिन लोगों ने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो उनका लॉस हो गया और जो लोग 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। तो ये जो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का जो गेम हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर उसके वो खिलाफ है। और ठीक इसी सिचुएशन यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर या फिर यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर भी होती है, लेकिन उसके रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। दूसरी चीज़, जो इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर जो फंड को यूज में लिया जाता है वहाँ पे जिस तरह की गवर्नमेंट को यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा एक और पॉइंट आता है यहाँ पे टैक्स का, 30% टैक्स और यहाँ पे 1% जो टीडीएस है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने इसके अंदर कुछ नहीं बोला। ये जो स्टेटमेंट आया, ये जो इंटरव्यू हो रहा है इसके अंदर, यानी कि केवल और केवल उन्होंने जो नेगेटिव चीज़ है उसी को बोला। साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए क्रिप्टो इन्वेस्टर का, देखिए यहाँ पे हज़ारों लाखों ने करोड़ों रुपए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे टीडीएस के लिए और यहाँ पे 30% टैक्स लिया जा रहा है। साथ ही साथ में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंडिया की तरफ से। इनके जो एक्चुअल में जो पॉइंट होने चाहिए, यानी कि जो आम इन्वेस्टर जो चीज़ सुनना चाहता है या फिर जो नया इन्वेस्टर आता है वो चीज़ जो जानना चाहता है वो तो इन्होंने यहाँ पे नहीं की, और जो चीज़ नहीं जानना चाहता है जिनका कोई मतलब नहीं यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। कुछ चीज़ें उन्होंने सही बोली है कि जो पंप और डंप होता है इस बीच में काफ़ी लोगों का लॉस हो जाता है और काफ़ी लोग अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वो एक तरह से स्किल होती है कब कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट कब इन्वेस्टमेंट करता है और कौन से टाइम पे इन्वेस्टमेंट करता है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे फैंटेसी के अंदर होता है, जो फैंटेसी होती है वो एक तरह से सट्टा ही है, लेकिन उसको गवर्नमेंट मानती है, वो एक ड्रीम 11 हो गई चाहे फिर कोई सी भी प्लेटफॉर्म हो गया, वो एक तरह से यहाँ पे स्किल का गेम है कि जो प्लेयर सेलेक्ट करेगा वो चल गया तो वो एक तरह से उसका स्किल हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो वो एक सट्टा है, वो सट्टा मार्केट को वो यहाँ पे स्किल बोलते हैं, फैंटेसी को स्किल बोलते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो क्रिप्टो से पैसा कमाते हैं, उनको ये स्किल नहीं बोल रहे हैं, एक तरह से उनको ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर जो रिस्क होती है उसको यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, जो फैंटेसी है और जो क्रिप्टो मार्केट है, इसके बीच में जो एक बड़ा डिफरेंस है उसको यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। साथ ही साथ में क्रिप्टो मार्केट एक बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, क्रिप्टो मार्केट एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। आरबीआई खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन फैंटेसी के अंदर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी यूज में नहीं आती है। वो प्योर सट्टा है, लेकिन उसको फैंटेसी मानती है, वो स्किल मानती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, साथ ही साथ में क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोग पैसा भी कमा रहे हैं अच्छा खासा। फिर भी यहाँ पे जो आरबीआई गवर्नर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीज़ बोलनी चाहिए, जो नेगेटिव पॉइंट है उनके, हमेशा वही पॉइंटों के ऊपर फोकस करती है। टैक्स के ऊपर बात नहीं करती है, दूसरी चीज़ एक्सचेंजों के ऊपर बात नहीं करती है, इन्वेस्टरों के ऊपर बात नहीं करती है, एक्सचेंज किस तरह से यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर बात नहीं करती है। बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज है, इंडिया के अंदर रन कर रहा है, अभी भी यहाँ पे टैक्स नहीं दे रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। इनके ऊपर जरूर इन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज ले रखा है गवर्नमेंट ने कि भी इनका यूआरएल ब्लॉक कर रखा है, लेकिन फिर भी चल तो रहा है यहाँ पे। तो ये जो 30% टैक्स के इंडियन एक्सचेंज को कलेक्ट किया जा रहा है उसके ऊपर बात नहीं करते, फॉरेन एक्सचेंज है उनके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर यहाँ पे आरबीआई गवर्नर बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जो नेगेटिव पॉइंट है उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर जो आना चाहता है, उनको ये बातें सोच के वो नहीं आएगा, और पुराने इन्वेस्टर का जो मोटिवेशन है उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे आरबीआई गवर्नर बातें कर रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ अपने स्टेटमेंट के अंदर आगे आने वाले के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ लानी पड़ेगी, कुछ स्टेटमेंट ऐसे देने पड़ेंगे जिससे कहीं ना कहीं आम इन्वेस्टर थोड़ा सा यहाँ पे सहूलियत महसूस करे, थोड़ा सा यहाँ पे समझे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सोच रही है और आरबीआई यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिप्टो के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। देखिए इंडियन एक्सचेंजों की बात करते हैं, यहाँ पे हालत खराब है, आप सबको पता है, डिपॉजिट विड्रॉल नहीं दे रहे। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा रहा है, बिलियंस के अंदर ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है। और डिपॉजिट विड्रॉल की प्रॉब्लम किस वजह से? आरबीआई की वजह से, या फिर यहाँ पे इंडियन जो गवर्नमेंट है उनकी वजह से। तो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो एक्सचेंज है वहाँ पे उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, उनके ऊपर पूरा फोकस रखे, कहाँ ट्रेड वॉल्यूम जा रहा है, कहाँ कितना आ रहा है, इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर तो यूज में नहीं हो रहा है, तो इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो एक्सचेंज इन्वेस्टर के साथ में धोखा करती है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट बनानी चाहिए। जो इन्वेस्टर अपना डिपॉजिट चाह रहा है तो वहाँ पे उसको क्विकली डिपॉजिट मिले, जो विड्रॉल करना चाह रहा है उसको क्विकली विड्रॉल मिले। खुद का पैसा एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हो रहा है, विड्रॉल नहीं कर पा रहे, इनके ऊपर इनको बात करनी चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वहीं इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो इस टाइम पे जो बेस्ट इंडियन एक्सचेंज है, जो इस टाइम पे अच्छी खासी रन में है और काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई है, वो है यहाँ पे CoinDCX। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ट्रेड वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, मिलियंस के अंदर ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, और इनके जो डेवलपर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लगातार जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे क्रिप्टो इन्वेस्टर की, चाहे वो टिकट उन्होंने जनरेट कर रखा है, विड्रॉल नहीं मिल रहा, उनका भी वो सोल्यूशन कर रहे हैं। साथ साथ में नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, डिपॉजिट के अंदर भी कुछ नई चीज़ें उन्होंने ऐड की है। साथ ही साथ में अलग अलग बैंकों के साथ में उनका कोलैबोरेशन हुआ, जिससे वो ईजी डिपॉजिट हो यहाँ पे। तो अगर आप CoinDCX यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंडिया की काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है यहाँ पे। इसके अलावा वजीरेक्स, सन क्रिप्टो, CoinSwitch, कुबेर, या फिर काफ़ी सारे एक्सचेंज, 28 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के जो FIU के अंदर रजिस्टर्ड है। मैं केवल बेस्ट की बात कर रहा हूँ जो इस टाइम पे ट्रेड वॉल्यूम के रिगार्डिंग। देखिए बेस्ट में अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज होती है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है इस टाइम पे CoinDCX के ऊपर आ जा रहा है। ऑफिशियल ट्रेड वॉल्यूम आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। तो जिस हिसाब से ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है इसका मतलब लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें और देखने को मिलेगी। अगर आप क्रिप्टो के अंदर नए हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इस टाइम पे बुल रन चल रहा है, बुल रन के अंदर वो टाइम होता है यहाँ पे पैसा कमाने का, जहाँ पे अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी और अलग अलग यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कमाया जाता है। तो आगे आने वाले टाइम में क्रिप्टो रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिंगल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।